Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your host, Aliza Naqvi, and today the guest we have in conversation, in order to introduce her, I feel like the word inspiration feels short. She has indeed developed a huge name for herself, a woman of grace. She is a chartered accountant, a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and she is the partner of tax and legal services of AF Ferguson's & Co. She has been active throughout her journey. Apart from being in the role of a partner, she has also been active on many different platforms as well. Yes, in 2023, she has been awarded by CA Woman of the Year, and apart from that, she is also very active in CA Women's Committee. Let's get to know her and her journey, which is indeed a massive one. A very warm welcome to Ms. Taha Bakay. Thank you very much. Thank you so much for having me here. It's a pleasure being here. And again, since I've been here in TSA, शायद मेरे ख्याल से पता नहीं कितने सालों पहले तो याद भी नहीं है. So एक nostalgic rush जो है ना वो gate से enter होते आया. So again, thank you for taking me back to this nostalgic journey. Thank you very much. We are indeed honored to have you here. Thank you very much. My pleasure. Okay, before moving forward, I want to start with asking you about a word that describes you currently in the position that you are. It could be personal or professional. The word that describes you entirely. Okay, basically, can I take liberty to use two words instead? Oh, please. Basically, I feel I'm ambitious and passionate. मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके पास एक पैशन होता है काम करने का, एक पैशन होता है बहुत सारे केसेस में लोगों को सर्व करने का, एक पैशन होता है डिफरेंट चीज़ें करने का और एक ओवरऑल सोसाइटी में कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट करने का. सो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली फील कि मेरे अंदर एज ऑफ नाउ है. एंड वक्त के साथ साथ जैसे एज आई एम एजिंग आई थिंक इट्स गेनिंग स्ट्रेंथ. सो दैट्स द वर्ड आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई सेल्फ विद एज ऑफ नाउ. Wonderful. As you mentioned, it is sort of a flashback of you emerging here again. Is it okay if we go back a little into the years, and when you started off, you are a student of Tabanis as well. So when you started and when you came into Tabanis, what was it like, and what other career options had you explored previously? अच्छा, आपको पता ही होगा, मैं आपको इससे पहले ही थोड़ा सा जिक्र कर रही थी. बेसिकली शुरू में जब मैंने आफ्टर माई कॉलेज आई हैड अ फ्यू ऑप्शंस और उस वक्त we are a family of doctors. We have a lot of doctors in our family, and my parents were also a little inclined towards this profession. So मुझे मेडिसिन कोई ख़ास पसंद नहीं थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ जो सबसे ज़्यादा जो मेरा फोबिया था वो डायसेक्शन से था. तो उससे बचने के लिए आई थिंक द अदर ऑप्शन आई वाज गिवन वाज चार्टर्ड अकाउंटेंसी. ऑल्दो आई वाज नॉट familiar with the course curriculum, I was not familiar with the entire path. I was not familiar with the firm names even, not even the names of the institutes. There's a friend of mine, her uncle was a chartered accountant and he owned an audit firm in Lahore. So she brought me here, and then that was the first time I heard the name Tabanis, and that was the first time I met Tabani साहब. So the rest is history. And उसके बाद तो फिर यही हुआ कि एक जर्नी शुरू हुआ जिसमें तबानी साहब ने सर समद दाऊद होते थे और काफ़ी सारे टीचर्स होते थे. खालिद फरीद साहब थे, लॉ के एक और सर थे मसूद साहब, एंड काफ़ी टीचर्स थे, ब्रिलियंट टीचर्स जिन्होंने हमको शेप अप किया और हम इतना आगे तक बढ़ सके. तो जो आदतें होती हैं ना आपकी हैबिट्स, वो आपकी हैबिट्स एक टाइम होता है जिसमें आपकी बन रही होती हैं. जैसे मैं सबको बोलती हूँ, इवन अपने बच्चों को भी बोलती हूँ सॉरी अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आपके साथ, आपकी फेलियर्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपके लिए कुछ सेटबैक्स हैं, आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मिला के एक आपकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं. सो जो जहाँ पे भी अभी हम हैं या जहाँ पे भी कोई भी है हमारे साथ के लोगों में से, उसमें एक डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन तबानी साहब का और इस ऑर्गेनाइजेशन का भी, इस इंस्टीट्यूट का डेफिनेटली है. जो भी हमारा जर्नी है उसमें आई वुड डेफिनेटली लाइक टू एक्नॉलेज कि तबानी साहब का और जो सारे टीचर्स हमारे थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उनकी मदद के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे डेफिनेटली. Oh, thank you so much. Actually, you have mentioned that you come from a family of doctors. Yeah. And this decision was sort of given to you that you're supposed to do chartered accountancy. तो आपने किस stage पे आके इस qualification को own किया, and when did you start to actually get interest in the field? अच्छा, I think
जो शुरू में मैंने पढ़ाई की, जो पहले हमारे टाइम में तो मॉड्यूलर सिस्टम होता था, तो मॉड्यूल्स A to D थे। उसमें मुझे अगर समझा जाए कि आई वॉज़ नॉट मुझे इतना समझे इतना ज़्यादा ओन मैं नहीं करती थी। आई थिंक जब मैं फर्गसन में गई उस वक्त फिर मैंने जब एक कॉर्पोरेट लाइफ को विटनेस किया, मैंने देखा कि ऑडिट कैसे करते हैं, एंड देयर इज़ अ मीनिंग टू इट। आपको शेयर्स लोग ख़रीदते हैं, उस वक्त शेयर्स का स्टॉक मार्केट का आइडिया हुआ कि किस तरह से होता है, क्या चीज़ें होती हैं, और हाउ पावरफुल इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि आप ऑडिट करते हैं। आपके ऊपर कितनी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका काम कितना अहमियत रखता है। तो दीज आर द ऑल द थिंग्स जिसके बाद फिर मुझे एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि जो एक पहले किताबों में पढ़ी थी चीज़ें उसकी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई तो उस वक्त दैट वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस फील्ड। और उसमें मुझे एक समझें कि एक मेरा जो पैशन था ना वो डेवलप होना शुरू हुआ, और उस वक्त मुझे एक समझे कि एक मज़ा आने लगा उस काम में। क्योंकि अगेन थियोरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एक्चुअली सोच नहीं पाते। ऑडिट हमने पढ़ा, ठीक है, कैसे ऑडिट होता है, कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, लेकिन जब आपने जाके उन सब चीज़ों को डिफरेंट क्लाइंट्स पे जाके उनको विटनेस किया, तो दैट वाज अनदर वर्ल्ड फॉर मी। दैट ओपन एवरीथिंग एंड दैट मेड एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। सारे जो पजल के पीसेस थे वो सारे फिक्स होते गए। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ। जो ऑडिट का एग्ज़ाम था मेरा मॉड्यूल ई में, मेरे ख्याल से वो ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसके लिए मैंने सबसे कम पढ़ा था। मैं 4-5 दिन खैर पढ़ा था और बस स्टैंडर्ड जैसे। तो उसमें लेकिन जब एग्ज़ाम का पेपर आया था उसमें उससे थोड़े टाइम पहले मैं एक MNC पे पोस्टेड थी फॉर ऑडिट। सो जो भी सवालात थे वो मैं वही MNC के सारे जो हमने प्रोसीजर्स करे थे वो सारे सोच के, और क्या उनके इंटरनल कंट्रोल से, वो सारी चीज़ें सोच के लिखी थी, एंड आई पास द पेपर। Wow. So this is how important your practical experience is, and this is how your practical experiences teach you. What kind of a student were you growing up? I was a pretty पहली बात तो ये कि I was not a very bright student. Okay. I was an okay student. first 5th में मेरा रैंक आता था, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हमेशा फर्स्ट। अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट। I was a very क्या कहना चाहिए, मैं बहुत खेल कूद में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। या आई वॉज़ वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स। वैसे जो दरख्तों पे चढ़ना, सब चीज़ें, या भाग दौड़ करना, यहाँ से चलाएंगे वहाँ से चलाएंगे। सो आई वॉज अ पर्सन ऑफ दैट सॉर्ट, मेरे भाई के साथ, मेरे कज़न्स के साथ। सो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ रादर देन पढ़ाई और लिखाई और इस सब चीज़ों में। या one cannot tell. Now you cannot, but if you ask my parents या मेरे सिबलिंग से पूछें तो आपको पता चलेगा कि बहुत शरारतें बहुत की हैं बचपन में, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हिस्ट्री है। You have good stories to tell. Yes, I have got many stories. Don't get me started there, please. We would like to go on to one story at least. What are some of the challenges that you faced, and any story that you can think of in your academic life? बेसिकली एकेडमिक लाइफ में तो मुझे चैलेंजेस एज सच याद नहीं है, शायद वो इतना ज़माना हो गया, या फिर आई डोंट थिंक कि मुझे इस तरह का कोई चैलेंज आया। आई फ्लंक्ड अ पेपर, उस वक्त हमारे टाइम में रेफरल होता था, तो मुझे इनफैक्ट जब मैं मॉड्यूल ई में थी तो मेरा कॉर्पोरेट लॉ सो स्ट्रॉन्ग कि रिजवान मनाई साहब होते थे, उनसे मैंने क्लासेस ली थी। सो ही सेड, जब मैं फ्रंट रो में बैठती थी तो ही सेड कि आपने लॉ पहली दफ़ा पढ़ी है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और आपका मेडल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका गोल्ड मेडल आएगा। एंड सम हाउ आई गॉट ओवर कॉन्फिडेंट, या पता नहीं क्या हुआ, तो उसके बाद उसी एग्ज़ाम में मॉड्यूल ई के 4 एग्ज़ाम्स में से उसी एग्ज़ाम में मेरा रेफरल आया। सो उस वक्त थोड़ा सा लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि शायद मैंने उस सीरियसनेस के साथ पढ़ाई नहीं की थी, या मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था कॉर्पोरेट लॉ को, जबकि वो काफ़ी लेंदी है और उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिटेन करनी होती हैं। तो शायद यही वजह थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा एहसास भी हुआ कि ज़्यादा ऊपर आसमान पे नहीं चढ़ना है, थोड़ा आई हैव टू गेट डाउन एंड get back into my पढ़ाई and all. So I think ये एक छोटा सा चैलेंज कह सकते हैं, but I would not even say that this was a challenge because ये सब चीज़ें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में चलती रहती हैं. It's pretty normal, I would say. Okay, fast forward today, what is currently a challenge in your life? करंटली भी मुझे कोई ऐसा चैलेंज नज़र नहीं आता. एक जो चैलेंज कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन होम, चिल्ड्रन एंड वर्क, ये सब चीज़ें कभी होती हैं. बट ओवर द ईयर्स व्हाट आई हैव लर्नड इज़ कि इट इज़ ऑलवेज क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी.
किसी भी चीज़ में आप देख लें, काम में देखें अपने, या आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने में देखें। मैं वैसे कभी सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो सुबह से शाम तक अगर घर में होते हैं एंड बच्चों को डांट रहे हैं या बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करे, बात नहीं है। सो ऐसे कि अगर मैं घर जा रही हूँ तो आई हैव टू एंटर माई हाउस विद अ स्माइल। Yeah. So I always make sure कि I enter the house with a smile and I don't take any sort of baggage home. एक तो वैसे एक चीज़ ये भी है कि मुझे काम में कभी भी इस तरह की कोई फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ नहीं होती। लोग समझते हैं कि काम में आपको थक जाते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको तकलीफ़ होती है, ऐसा नहीं है। सो आई मेक श्योर आई एंटर द हाउस विद अ स्माइल एंड मैं कोई भी चीज़ रास्ते की, आपको पास दफ़ा ट्रैफिक की फ्रस्ट्रेशन होती है, वो चीज़ होती है, आई डोंट टेक एनीथिंग होम। सो आई मेक श्योर कि अगर मैं घर जा रही हूँ और मैं अगर 10 मिनट भी बच्चों के साथ बैठ रही हूँ, जितना भी टाइम बैठ रही हूँ, तो आई एंगेज इन टू मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन विद दैम। दी अदर थिंग इज़ जो चैलेंज, एक और मतलब अगेन चैलेंज जो होता है ना, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आपको सोल्यूशन करना पड़ता है। Definitely. कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसे चैलेंज नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई है उसको आप मैनेज कर सकते हैं किसी ना किसी तरह। सो जो बच्चों के केस में मैं होती ऑफिस में हूँ, बट मैं आई हैव एन आई ऑन द टाइम टेबल, आई हैव एन आई ऑन when my eldest one has to take this class, when he has to go for football, when he has to go for this and that. So I ensure I manage these things well. And working mothers के केस में अच्छी चीज़ ये होती है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि बच्चे जो हैं दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट अर्लियर दैन देयर जो बाकी पीयर्स होते हैं उनके हिसाब से। सो ये भी एक बेनिफिट होता है, और बच्चे जो हैं चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी अज्यूम कर लेते हैं। तो मेरे केस में जो चैलेंज मुझे लगता है वो यही एक बैलेंस का लगता है, जो कि मैनेज करने का तरीका मेरे ये होता है कि अगर मैं थोड़ा टाइम भी स्पेंड करूँ तो मैं उसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ और अच्छी तरह स्पेंड करूँ, विदाउट विदाउट माई फ़ोन और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। वी वॉच मूवीज़ टुगेदर, वी गो फॉर फन, वी गो फॉर हॉलीडे एंड ऑल। तो जो आपका क्वालिटी टाइम होता है ना, वो एक्चुअली मैटर करता है। And that is indeed a very good way to look at it. You mentioned earlier, like, just say you started firm, and that is when you got an idea of the work life, how it is, and that is when you started to gain passion towards it. So, usi ke sath sath, a little bit about your personal life as well. When you were working in AFF, you also got married, and you were also having kids at the same time, raising a family, and all of the things that are equally important. So, what is something that you would like to mention that helped you to juggle, and what are some of the things that you had to reconsider in your journey? So I was in AM when I was expecting my first child. I think I had just served for around 8-9 months. I was expecting my first child. So and मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि the doctor advised me rest. So I resigned. And 1 साल गैप के बाद when my son was थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गया, so I rejoined Ferguson. अच्छा, उस वक्त बड़ी अच्छी बात फर्गसन में ये हुई that they established a daycare there. Okay. And my son was the first child of the daycare. जो daycare था, it is, I still say it is the biggest blessing. It's the biggest support system anyone can ever have, because you can go visit your child, you keep an eye on the child through the cameras installed there. There's a controlled environment, there's a कंट्रोल इन्वायरमेंट से मतलब ये है कि बच्चा कोई डेंजरस चीज़ें नहीं कर रहा। आप जब ऑफिस में होते हैं, आपके पास 10 सोचें होती हैं कि बच्चे किसी डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, सॉकेट्स में ना लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। फिर उसके बाद जो मैंने गैप लिया, जब मैंने फिर रीजॉइन किया, फिर उसके बाद मैंने एक और गैप लिया व्हेन माय सेकंड चाइल्ड अमल वाज बोर्न। फिर उसके बाद मैंने थर्ड गैप लिया व्हेन आई वाज अ सीनियर मैनेजर। सो आई हैव 3 साल के गैप्स इन माय करियर, जिसकी वजह से डेफिनेटली कि एक अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ किसी भी ऐसे शख्स के साथ जिसने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया और कंटिन्यूसली उसकी ग्रोथ हुई, तो मेरी ग्रोथ एट अ टाइम स्लो भी हुई, राइट, बट देन आई गॉट एन अर्ली प्रमोशन। फिर उसके बाद मुझे सपोर्ट बहुत थी, और मुझे जो आगे जाके जर्नी था उसमें भी काफ़ी जो डे केयर के साथ बहुत सपोर्ट मिली। और आगे भी आप जब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी ग्रोथ होती जाती है। सो जो यहाँ से जो पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ ना, वो ये बताना चाह रही हूँ कि जब तक आप अपने आप को ना किसी और के साथ कंपेयर करते रहेंगे ना, बिकॉज दूसरों के और आपकी सिचुएशंस में बहुत मुख्तलिफ होती हैं, बहुत डिफरेंस होता है। जब तक आप दोनों को कंपेयर करते रहेंगे
तो आप कभी भी अपने आप को ख़ुद आगे बढ़ता हुआ नहीं समझ सकते। आप हमेशा किसी न किसी चीज़ में खुश रहेंगे, आप कहेंगे उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। सो कंपैरिजन जो है पहली चीज़ वो तो समझ में नहीं आती मुझे, क्योंकि देखें जो एक बीइंग अ वुमन आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, घर में दावत है, मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, people from outside Pakistan. So there's a lot that you have to handle being a woman. But on the contrary, the society is society में expectations इस तरह से develop हुई हुई हैं कि वो चीज़ें आदमियों से expect नहीं की जाती कि अगर वो ऑफिस से आ रहे हैं तो they don't have to do anything at home, जो generally हमारे यहाँ सिस्टम है। बट women से expectation होती है कि वो घर आके सब काम भी करें, जो भी कुछ चीज़ें हैं। मेरे केस में आई हैव बीन लकी कि इतना मेरे ऊपर प्रेशर उस तरह से नहीं था, बट अगेन दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव टू गो थ्रू इट। एंड जो उनसे एक्सपेक्टेशन, देखें जब आपकी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और आपको जब कंपेयर किया जाता है ना विद योर मेल काउंटर पार्ट्स, तो सबसे बड़ा कंपैरिजन ये होता है कि आप कितना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कहीं कहीं पे ख़वातीन की अफेक्ट हो रही होती है, जिनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं, या उनके लिए घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि एक सर्टेन टाइम तक वो घर आ जाएं, या एक सर्टेन टाइम पे किसी को बच्चे को बीमार हो गई, कुछ चीज़ हो गई, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन पे आ जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें मैनेज करना। सो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। मेरे केस में सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये था कि जैसे मैंने बताया कि एक डे केयर हमारे फर्गसन में ही मौजूद था, तो मैं तो हमारी पूरी फैमिली। Was it something you requested या फिर okay? Yes, we did request for a day care and हमारे पार्टनर शब्बर साहब होते थे उस वक्त, असरा हैं पार्टनर, तो दे वर द पीपल जिन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट को लिया और उन्होंने इस्टेब्लिश किया। द डे केयर इज स्टिल रनिंग। अभी भी हमारे पास जो फीमेल स्ट्रेंथ बढ़ी है वो डे केयर की वजह, डे केयर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। सो वी हैव अ गुड फीमेल स्ट्रेंथ एंड जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है पीस ऑफ माइंड व्हेन यू हैव अ डे केयर देयर। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ख़वातीन के केस में, इट्स हाउ स्ट्रॉन्ग द सपोर्ट सिस्टम इज़, राइट। फैमिली कितनी सपोर्टिव है, हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं, बच्चों के क्या अरेंजमेंट्स हैं। सो आई ऑफन से कि जैसे बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, सो आई ऑलवेज से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ एन एंटायर सपोर्ट सिस्टम। तो अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता आप नहीं आगे बढ़ सकते। सो मेरे ख्याल से तो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, और मेरे केस में भी यही हुआ कि सिंस माई सपोर्ट सिस्टम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग आई वॉज एबल टू डू थिंग्स जो मेरा दिल चाहता था, और जहाँ जो काम करने में मुझे अच्छा लगता था, मज़ा आता था। अच्छा, वो काम में मज़ा कब डेवलप हुआ? बिकॉज यू आर वर्किंग एंड यू टुक ब्रेक्स अलोंग द वे एज वेल एंड यू आर अ पार्टनर ऑफ टैक्स एंड लीगल सर्विसेज, तो वो after becoming a partner, was it something that now you're very passionate for, or you have always had an inclined interest towards it? Basically जो टैक्स है, टैक्स इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फील्ड। टैक्स में आपको शुरू में ही अंदाज़ हो जाता है कि क्या आपको इसमें अच्छा लग रहा है काम करना या आपको अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ, काफ़ी लोगों को टैक्स ड्राई लगता है। जैसे मेरी प्रेजेंटेशंस वगैरह भी होती हैं तो उसमें मैं देख रही होती हूँ, कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं, चीज़ें समझ रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा उनको समझने में या थोड़ा उनको शायद बोरिंग लगता है। लोग बोलते भी हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो मतलब बड़ी बोरिंग से हमें लग रहा था, इतना समझने में मुश्किल हो रही थी। कल ही मेरी एक प्रेजेंटेशन थी, तो देयर इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर, शी केम टू मी, शी सेड सेल्स टैक्स मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया और मुझे सेल्स टैक्स जो है वो बड़ा बोरिंग लगता है, तो तुमने बड़े आसानी से समझाया लेकिन फिर भी वो मुझे समझने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा परेशान ना हो, मुझसे सवाल पूछ रही थी वो तो मैंने उनसे कहा परेशान हो, आपको समझा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। सो लोग जो हैं वो टैक्स जो है ना वो हर किसी के लिए पैलेटेबल नहीं होता। सो उसमें यही होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको शौक़ है तो आप कर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप उस हिसाब से चीज़ें नहीं देखते तो फिर वो इट बिकम्स वेरी डल फॉर यू। सो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका एक इंटरेस्ट नहीं होता और उनको वो चीज़ें बोरिंग लगनी शुरू होती हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा होता उन चीज़ों में। And we have seen you very active on different platforms as well, whether it's the post-budget seminar or you conducting trainings for people at different levels. So is that something that also is connected with your interest?
And is that something you're also equally passionate for? एब्सोल्युटली आई एन्जॉय स्पीकिंग. अच्छा, पहला जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने उससे पहले कभी कहीं बात नहीं की. देयर वाज अ फर्गसन में हमारे यहाँ एक होता था सेशन, उसमें सारे जो मैनेजर्स हैं वो जाके प्रेजेंटेशन देते थे किसी भी चीज़ पे. ओके. तो जब मेरी प्रेजेंटेशन मैंने दी तो सबको बड़ी पसंद आई, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट आई एन्जॉय दिस थिंग, आई एन्जॉय डूइंग इट. एंड फिर उसके बाद हम लोग जब टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमारी डिफरेंट हियरिंग्स होती हैं, कमिश्नर अपील्स के पास होती है, ट्रिब्यूनल के पास होती है. सो दिस वन थिंग जो आपको कभी भी करनी पड़ती है या करनी होती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर करियर ग्रोइंग अप, वो ये होती है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग की आदत सी हो जाती है, या आपके लिए वो एक अलग एक्सपीरियंस नहीं रहता, या आपके लिए एक मुश्किल उसकी नहीं रहती. सो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब मैंने पोस्ट बजट किया था, तो मुझे उस तरह से लोग जैसे एक पढ़ते हैं कि बहुत स्टेज फियर होता है, आई डेंट फील दैट. शायद वो इसलिए क्योंकि हम ट्रिब्यूनल में जाके हियरिंग्स कराते थे. वहाँ पे ट्रिब्यूनल में देर आर बेंच मेंबर्स, पोडियम होता है, उस पर एक डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम लोग होते हैं, पीछे मेंबर्स बैठे होते हैं. सो शायद इसलिए हमें फ़ील नहीं हुआ, मुझे फ़ील नहीं हुआ, या बिकॉज हमारी एक तो प्रैक्टिस होती जाती है, तो या शायद इसलिए मुझे अजीब सा नहीं लगा. लेकिन दैट इज़ समथिंग आई एन्जॉय डूइंग, मुझे अच्छा लगा वो करना. और फिर उसके बाद जब स्टार्ट किया तो फिर द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. Definitely. All right. With accounting profession on one hand and the emerging technologies at the other, what do you think are some of the things that auditors need to now be aware of in order to stay up to date? पहली चीज़, मुझे थोड़ा सा आपका सवाल है ना, उससे मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगी यहाँ पे. बेसिकली जो एक ऑफन लोग जब सवाल पूछते हैं ना, जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि अकाउंटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग और टैक्स में से जो भी स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं ना, स्ट्रक्चर्ड चीज़ों से मतलब ये कि 2+2 4 हो जाएगा, जो है ना. तो जो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं वो ऑब्सोलीट डेफिनेटली हो जाएंगी. जिस चीज़ों में आपका इंटेलेक्ट लग रहा है, जो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ इट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, वो वाली चीज़ें ऐसी हैं जिनकी फिर भी रेलेवेंस रहेगी. अगेन जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है उससे आपका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है. आई जस्ट गिव यू वेरी ब्रीफ एग्जांपल. My son was working on a project and he said that, I asked him that have you made your presentation. He said no, yes I've made my presentation. मैंने कहा अच्छा ठीक है. कह रहा है कि ये QR कोड है, सब अपने फ़ोन से करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन उनको नज़र आ जाएगी. So I said, okay, that's a very good idea, and this is exactly what I'm going to do in my next presentation as well. Wonderful. Because people keep asking for presentations. कल भी एक मेरा सेमिनार था ICAP में, तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने वहाँ पे कहा कि आप अपनी प्लीज़ प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप कर दें, हमें उसको देखना है, पढ़ना है चीज़ें. तो अब सबके नंबर लेके वो व्हाट्सएप करना इज़ टफ. या तो मैंने फिर जो है वो रियलाइज़ किया कि येस, दिस इज़ वन थिंग विच इज़ गोइंग टू मेक माई लाइफ ईजियर. सो अगेन टेक्नोलॉजी को आप जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह से वो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना सकती है. एक और अच्छा, मेरी एक छोटी सी आदत ये भी है कि अगर इफ़ आई एम PwC का एक ह्यूज नेटवर्क है, राइट, एंड अगर हम किसी देर आर ऑफन टाइम्स जब हम डिफरेंट फर्म्स के साथ काम कर रहे होते हैं, PwC US के साथ कर रहे हैं, UK के साथ कर रहे हैं, इधर डिफरेंट मिडल ईस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरा अपना पर्सनली एक ख्वाहिश होती है कि मैं उनसे पूछूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है टैक्स में, एंड क्या चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, जस्ट अ लिटिल इनसाइट. तो हमारे यहाँ जो गूगल टीम्स होता है ना, उसमें चैट्स में, तो एक PwC UK में एक मेरी बात हो रही थी किसी पार्टनर से. सो आई आस्क्ड हिम कि how is everything going there and are you using any new tools or anything. So he said कि वो basically AI based tool use कर रहे हैं for their opinions, advices and the things that they're doing. And globally भी PwC, आप ख़बरों में LinkedIn वगैरह पे देख रही होती होंगी कि is heavily investing in AI. तो generative AI में इस वक्त PwC की बहुत heavy investment है. So इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो हमारा काम करने का तरीका है वो इवॉल्व हो रहा है. और अगेन जो बिजनेसेस है ना, आप देखें बिजनेसेस भी ओवर द इयर्स इवॉल्व होते गए हैं. जो कन्वेंशनल तरीका था दुकान पे या मॉल्स में चीज़ें बेचने का, वो भी ऑब्सोलीट सा होता जा रहा है. Okay, you mentioned about working with PwC, UK and Middle East and a lot more of the region. What do you think are certain cultural values or certain corporate ethics that you admire of their end, and you think that we can collaborate
those values into our working culture as well? बेसिकली जो यूरोपियन कल्चर है ना उसमें दे वेरी कंसिडरेट, दे वेरी दे नो वन वुड कॉल यू ओवर द वीकेंड. They would say, Okay. don't schedule this call over the weekend. They would say, they would apologize 100 times if they're scheduling a call at 7 a.m., 7 p.m. or 9 a.m. in the morning or 8 a.m. in the morning. You know, अगर off time पे हमारे कर रहे होते हैं, after office hours कर रहे होते हैं, तो they apologize पहले, फिर पूछते हैं आप आ सकते हैं, and we really thank you. So basically जो यूरोपियंस हैं by their very nature, वो कल्चर उस मुल्क का भी ऐसा ही है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं. एंड जो मिडल ईस्ट वाले वो तो हमारी तरह ही होते हैं. मिडल ईस्ट में देयर इज नॉट मच डिफरेंस. लेकिन स्पेसिफिकली जो यूरोपियन क्लाइंट्स हैं या जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वहाँ पे एक पोलाइटनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है. ओके. सो आई थिंक वी कैन ऑल्सो डू दैट. लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें उसमें आने में, जैसे आई पर्सनली फील, मैं अगर किसी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आ जाएँ वीकेंड पे, तो करनी पड़ती है. कभी कभी हम आ जाते हैं. मैं खुद जो है वो सैटरडे संडे जाना पसंद नहीं करती ऑफिस. मेरी कोशिश होती है कि मैं वीकडेज़ में जितना भी जो काम है वो ख़त्म कर लूँ, एंड सैटरडेज़ और संडे को मैं ऑफिस नहीं जाऊँ. या अगर मैं सैटरडे को जा रही हूँ तो मैं अपनी टीम को ना बुलाऊँ, या फिर अगर मैं किसी ऑफ डे पे किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ तो अगर काम मुझसे हो सकता है, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने ही सेव किए होते हैं कहीं पे, तो मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है. लेकिन अगर मेरा जैसे कुछ ऐसे दिन पे कुछ मुहर्रम की छुट्टियों में उसमें कुछ काम है, तो आई प्रेफर डूइंग इट बाय माई सेल्फ रादर देन आस्किंग एनी ऑफ द टीम मेम्बर्स. ट्राई करते हैं, बट देर आर एट टाइम्स कभी कभी अर्जेंसी होती है जिसकी वजह से हमें वीकेंड्स लगाने पड़ते हैं. बट पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा वीकेंड्स नहीं जाती. Okay. CA Woman of the Year. How was that like? A little bit about what you were feeling at that time, and what do you think is sort of a contribution towards you winning that award? बेसिकली CA वुमेन ऑफ द ईयर जो अवार्ड होता है वो आउटस्टैंडिंग वुमेन को उनकी कंट्रीब्यूशन पे दिया जाता है. हर साल वो किसी खातून को सेलेक्ट करते हैं, एंड देयर इज़ एन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, देयर इज़ एन इवैल्यूएशन बोर्ड. द इवैल्यूएशन बोर्ड और कमिटी इवैल्यूएट्स द जिसकी नॉमिनेशन हुई हुई होती है नॉमिनी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन नो नेम्स बेसिस. सो दे आर नॉट अवेयर कि किसकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन वो फिर इवैल्यूएशन के बाद एक क्राइटेरिया होने के बाद फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. सो बेसिकली CA वुमेन में भी यही था. कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थी जो कि प्रोफेशनल लेवल पे थी, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थी जो CA वुमेन कमेटी की थी, और वैसे ही ओवरऑल एक बस उन्होंने इस काबिल समझा डिफरेंट चीज़ों के लिए और उन्होंने एक्नॉलेज किया. बस दैट्स इट. Can you share a particular memory or a moment of accomplishment where you feel like you have made it in your career? Like this was the setting stone that you had set for yourself, and now even that is achieved. What was that point? अच्छा, आई वुड नॉट से दैट दिस वाज अ सेटिंग स्टोन आई हैड सेट फॉर माई सेल्फ. मैं जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती हूँ. एक दफ़ा एक स्कूल में मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं प्लीज़. हमारा एक वी आर सॉर्ट ऑफ गाइडिंग A-level students for on their career choices. So we'd like to welcome you at the school, and we'd want you to apprise the students about the qualification and all. So I went there, और उसमें उन्होंने ब्रोशर छापा, अपने स्टूडेंट्स में सर्कुलेट किया. तो my daughter is also in the same school. Okay. She's in grade 5 and no one knew कि मेरी बेटी भी स्कूल में. So that was the day when she came and she said, Mama, I'm really proud of you. और उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ. Wow. तो दैट वाज द डे आई फेल्ट कि आई हैव अचीव समथिंग. सो बाकी जो भी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जब आपके लव्ड वंस उनको एक्नॉलेज करते हैं या उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो लेवल ही अलग होता है. या एक और मैं जो एग्जांपल देती हूँ, वो जो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, ये कि जब मैं व्हेन आई वाज इंडक्टेड एज अ पार्टनर एट फर्गसन, so my husband, he sent me a message and he said, it feels that I've lived my professional life twice, and people fulfill their dreams through their children, but I fulfilled my dream through you. Wow. So that was such a powerful message, and It is. and it really made my day, and it really made me think that how he has supported me and how big of a support he has been throughout my journey. कितना ज़्यादा किसी चीज़ में किसी यूजुअली देखिए बहुत सारी फैमिलीज़ में स्पाउसेस ही सपोर्ट नहीं कर रहे होते उस हिसाब से. आई थिंक जो सेम प्रोफेशन होता है उसका ये एडवांटेज बहुत बड़ा होता है कि द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स द इंडस्ट्री, अंडरस्टैंड्स द वर्क, अंडरस्टैंड्स द डायनामिक्स ऑफ द प्रोफेशन.
So इस situation में he totally understands it and he actively supported me, and I think, and in fact my mother says that if your partner has 75% credit goes to your husband because he has been pushing you all the time to go for it, and then you can, and that you can do it and all. So 75% credit is his. So I jokingly say often that I mean, what is this यार, ये तो 75% credit तो आपने दे दिया, बचा 25 मुझे दे रही है. So that is how it is. But yes, जो acknowledgement आपकी क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फैमिली से आती है ना, उसकी अलग बात होती है. Definitely. So what keeps Miss Taha Bakai going? Like, she is passionate and she's ambitious and she's looking onto new horizons and new opportunities. But what fuels her from within? जो पहली चीज़, एक तो चीज़ पैशन वगैरह को, सब चीज़ को छोड़ के ना, जो मुझे लगता है कि मेरे केस में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक आई वांट टू टेल माय डॉटर दैट शी इज़ नॉट मेंट फॉर द टिपिकल वुमन रोल दैट इज़ सीन इन आवर सोसाइटी. शी कैन डू, इट डज नॉट मीन दैट शी कैन नॉट बी अ हाउस वाइफ. इट मीन्स दैट शी कैन डू वट एवर शी विशेज़ टू डू फॉर, राइट. अगर उसकी ऑप्शन ये है कि उसको एक काम करना है, उसको एक्सेल करना है, तो शी कैन डू इट. जब आपके बच्चे होते हैं तो आपके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. माई मदर ऑफन सेज कि आप बच्चों की खामोश तरबियत करते हैं. यू डोंट ऑफन हैव टू से एनीथिंग, बट यू आर डेवलपिंग देम इन मैनर्स और इन वेज. जो आप चीज़ें कर रहे होते हैं उससे वो डेवलप हो रहे होते हैं, राइट. सो अनकॉन्शियसली आपके बच्चे उन चीज़ों से सीख रहे होते हैं. सो आई रियली फील कि आई नीड टू टेल माई चिल्ड्रन दैट दिस समथिंग दैट if they think of something, there's nothing that can stop them from doing it or from achieving it. You are without a doubt an inspiration, a motivation for all of the women out there, because I feel like in the field we are in currently, there are not many female role models, and it is definitely so refreshing to see women being in the corporate roles, and what is required of them, they are giving their 100% towards it. That's very kind of you. Thank you very much for all this appreciation. You deserve every bit of it. Thank you very much. Thank you very much. I'm really honored to hear all these kind words from you. Thank you very much. A little about the accountancy profession. Where do you feel like the profession will be in 10 years from now? And what should our youth be expecting regarding the opportunities they can get in the accountancy field? अच्छा, बेसिकली जो अकाउंटेंसी फील्ड है, इट इज़ ऑल्सो एवर इवॉल्विंग, इट इज़ चेंजिंग. जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था शुरू में, तो उस वक्त तो लैपटॉप्स भी हर किसी के पास नहीं होते थे जब मेरी आर्टिकल स्टार्ट हुई थी. बट अगेन, जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान में आ रही होती हैं वो आपके पास पहले आती हैं. सो फर्गसन में भी एक हमारा फोकस होता है, वो ये होता है कि हम जो हमारे लोग हैं जो काम करें उनको हम अप स्किल करें. जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, मैं पर्सनली टैक्स के लिए आई कीप एन आई ऑन जो भी हमारी पब्लिकेशंस वगैरह आ रही होती हैं. वी हैव एक मैकेनिज्म होता है हमारे यहाँ जिसमें हमारे पास डिफरेंट पब्लिकेशंस आ रही होती हैं कि दीज आर द इमर्जिंग टैक्स ट्रेंड्स, ये चीज़ें आ रही हैं. सो वी कीप एन आई ऑन दोज एंड वी ट्राई टू ट्रेन आवर रिसोर्सेज ऑन देम, राइट. पहले हम खुद सीखते हैं, फिर उसके बाद अपनी रिसोर्सेज समझाते हैं. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं एंड लर्निंग एंड एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं. जैसे भी बजट आया था उसके ऊपर सब बैठ के बात करते हैं कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये डिफरेंस, ये मुश्किलात आ रही हैं, तो इसको आप कैसे सॉर्ट करें, इसके ऊपर आपने कोई ओपिनियन दिया है. सो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट वो ऐसी चीज़ है जो कि आगे बढ़ता रहता है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अकाउंटेंसी प्रोफेशन जो टेक्नोलॉजी के साथ, अगेन देयर इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्ट कि टेक्नोलॉजी ने सब चीज़ें जैसे हम सोचते थे, जिस तरह से करते, उस सबको चेंज कर दिया काफ़ी हद तक, और आगे भी इसी तरह से मज़ीद चेंजेस आती जा रही हैं. एंड जो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि जो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं वो तो आपकी टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू टेक ओवर दोज, राइट. जैसे एक बड़ी मज़े की बात मुझे किसी ने बताई, आई लाइक टू शेयर हियर. ही सेड जब कैलकुलेटर्स आए थे पहले, तो ही सेड कि वो वहाँ पे जो दुकानों में जाके उन्होंने कैलकुलेटर्स दिए. उन्होंने कहा ये क्या काम करते हैं, तो पूछा दुकानदारों ने कि ये क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा जो आपको हिसाब है ये जल्दी कर देंगे ऐसे. तो उन्होंने कहा हिसाब के जल्दी कर देंगे, उन्होंने ऐसे ज़बानी ही वो हिसाब के, उन्होंने कहा ये रहा हिसाब. तो लोगों की एक्सेप्टेंस कैलकुलेटर की नहीं थी, लेकिन जब कैलकुलेटर आया तो लोगों ने अपना जो दिमाग
कैलकुलेशन में लगा रहे थे उसको उन्होंने दूसरी चीज़ों में लगाया, और उसको उन्होंने जो एक सिंपल टास्क थी टोटल करने की प्लस माइनस की, उन्होंने कैलकुलेटर को दे दी. सिमिलरली जस्ट गेटिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट बेसिक एग्जाम्पल, इसी तरह से जो आपके बेसिक काम होंगे वो आपकी टेक्नोलॉजी करेगी, लेकिन जो उसके ऊपर का स्ट्रक्चर होगा ना, जिसमें आपका थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, वो वाली सारी चीज़ें वो आपको ही करनी होंगी. सो जो लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आएगी हम सब बेकार हो जाएंगे एंड ऑल, सो उस केस में आपको अपना स्किल एज अ डेवलप करना होगा कि जो आप बेसिक स्ट्रक्चर्ड काम करें, 2 और 2 4 करें, यू वोंट बी एबल टू डू इट. सो यू बेटर इक्विप योर सेल्व्स विद द न्यू ट्रेंड्स, विद ऑल दोज जो आगे आपकी चीज़ें आने वाली हैं उसके साथ आप इक्विप करें और उसको बेहतर तरीके से यूज़ करें. That is indeed a very powerful way to look at it. Now, moving forward, I'm sure in your career you have conducted various interviews at various levels. But since you're at Tabanis, so a little bit in linked to that, all of those students, whether it's CA or ACCA, who are opting to get into the Big Four, what do you think, what certain skill sets should they work on into their interviews, and what prior work they have to do, and basically what is that roadmap in order to get into the firm, and is it really that difficult or is it just a myth? बेसिकली अभी देखिए आप देखें तो जो इंडक्शन प्रोसेस है वो बहुत चेंज होता गया है. पहले 4 फर्म्स इंडक्ट कर रही होती थी, 4 बिग 4 इंडक्ट कर रही थी, अब सिर्फ 2 फर्म्स इंडक्ट कर रही होती हैं, KPMG और PwC. सो एक डेफिनेटली एक जो इनफ्लो है वो इनटू द फर्म्स वो कम तो हुआ है, जो स्पेस है वो लिमिट तो हो गई है डेफिनेटली. तो इस सिचुएशन में द कंपटीशन हैज़ ग्रोन फियर्स. जो कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए बेसिकली जो अब हम लोग जैसे इंटरव्यूज़ में देख रहे होते हैं, तो लोग बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने सिर्फ सारी ज़िंदगी पढ़ाई की होती है. और अगर आप बाकी भी रिसर्चेस पढ़ें, आई थिंक काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ ही होगा कि आपको एक ऑलराउंडर होने के लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई तो ज़रूरी है डेफिनेटली, लेकिन आपको बाकी भी दुनिया की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मेरा सबसे बड़ा जो एक गिला होता है ना लोगों से, वो ये होता है कि लोगों की कोई हॉबीज़, कोई बच्चे बोलते हैं आके इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि वी डोंट हैव एनी हॉबीज़, वी डोंट डू एनीथिंग एल्स, पढ़ाई के साथ हमें टाइम ही नहीं मिलता, कुछ चीज़ का वो नहीं मिलता. लेकिन देयर इज़ समथिंग टू कीप योर सेल्फ सेन. वॉच एनी नेटफ्लिक्स सीरीज़, कुछ भी चीज़ आप देख सकते हैं, बट आपके पास कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पे आप अनवाइंड करें, आप रिलैक्स करें, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. अ पर्सन विदाउट अ हॉबी, मुझे समझ में नहीं आती बात कि आपकी कोई हॉबी नहीं है, आप सारा कैसे पढ़ सकते हैं. सो उसके अलावा भी जो इनटेक आ रहा होता है, कुछ बच्चे उसमें से बहुत तेज़ होते हैं. जो पर्सनली मुझे ज़्यादा देखिए बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे केस में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करते हैं बच्चे, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि ये बहुत ही दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगेन आगे अल्लाह ताला बेहतर करे उन लोगों के लिए, लेकिन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो होते हैं जो कि ऑलराउंडर्स होते हैं. राइट. बच्चे ऐसे भी आते हैं जो एक किसी ने फाइनेंशियल उसकी सिचुएशन की वजह से उसने ही सर्व्ड एज अ वेटर, उसने पढ़ाई भी साथ में करी है, एंड देन उसको पता भी है कि दुनिया में क्या हो रहा है. मतलब एक स्ट्रीट स्मार्ट तेज़ किस्म के बच्चे जो होते हैं वो होते हैं. सिर्फ जो पढ़ाई में लगे रहते हैं, मुझे लगता है कि उनकी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाती. तो पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट. पढ़ाई का ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पढ़ाई इज़ नॉट दी ओनली थिंग. इट इज़ नॉट दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी भी आपका स्किल सेट डेवलप होना ज़रूरी है. आपको एक थोड़ा सा दुनिया का पता होना चाहिए. अखबार लोग नहीं पढ़ते, पता नहीं होता लोगों को क्या चल रहा है. तो थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए. जो एक सबसे ज़्यादा जो मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है लोगों में, वो ये सबसे बड़ी है. ओके. You defined yourself at the start of this podcast as somebody who's passionate and ambitious. But I feel like it is very much safe to say that you're also somebody who's very soft-spoken, very polite, and that goes in link with who you are today, because it has led you to opportunities and it has led you to vast horizons that you have now conquered, and it is through humility that you are able to become the person you are today with incredible grace and tact. Thank you so much. Thank you very much for your kindness. Thank you so much. I'm really humbled. And we are very honored to have you. Thank you so much for your time. You're welcome. This has been a lovely conversation and an enlightening one as well.
Thank you so much. And I'd like to give a message in the end, if Please, that's okay. please, yes. The stage is yours. Thank you so much for the limelight. अच्छा, मैं जो है ना एक चीज़ जो मैं एक या दो चीज़ें जो मैं नोट कर रही होती हूँ ना, आजकल जब आप बात करी थी तो मैं उसमें सोच रही थी कि एक या दो चीज़ें जो मैं नोट कर रही होती हूँ बच्चों में अभी, नॉट फॉर CA induction in firms after qualification. The trend that has been noticed is that everyone wants to go outside Pakistan. They just या फिर एक जो career choices होती हैं, they are very much based on money most of the times. Okay. So जो चीज़ मैंने नोट की है ना वो ये बहुत बड़ी है कि ऑफन उस जो आपकी जो प्रेफरेंस होती है ना मनी की, टू द पॉइंट वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जो प्रेफरेंस ग्रोथ की होती है ना वो अंडरमाइन हो रही होती है. सो लोग जब चॉइसेस व्हेन दे मेकिंग चॉइसेस, द इशू इज़ दैट दे चूज़ पाथ जहाँ पर उनके लिए बड़े जल्दी पैसे उनको बन जाएँ. जब ये ऐसा भी होता है कि वो इनिशियली उसमें पैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन आगे जाके आपकी ग्रोथ स्टैगनेंट होने की वजह से आपकी आगे अपॉर्चुनिटी नहीं होती. सो आई ऑलवेज से कि लुक एट द ब्राइटर, एट द बिगर पिक्चर, और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप एवेल्यूएट करें रादर देन गोइंग फॉर अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट. लुक एट द लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स दैट द अपॉर्चुनिटी हैज़. द अदर थिंग इज़, जैसे अभी मुझे कल परसों में किसी का लिंक्डइन पे मैसेज आया था, मैंने देखा सुबह में, आई फेल्ट वेरी सैड. द पर्सन हैड रिटन दैट he had attempted CA papers and he couldn't make it and he was very sad and he has decided to quit CA or something of that sort. So यूजुअली मैं स्किप मैसेजेस नहीं पढ़ पाती इतने ज़्यादा, लेकिन वो मैसेज ऐसे थे जो फ़ौरन से पॉप हुआ और मैंने पढ़ लिया उस वक्त. तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगहों से आ सकते हैं, और मैंने पर्सनली देखा है कि इस जो फर्गसन का ही मैं बता सकती हूँ, तो फर्गसन हैज़ मेड लाइव्स, लोगों की लाइफ्स चेंज हो गई हैं, लोगों की फैमिलीज़ चेंज हो गई हैं. पीपल कमिंग फ्रॉम इंटीरियर सिंध, उन्होंने सिंधी मीडियम स्कूल से पढ़ा, नीचे जो टाट के ऊपर बैठ के पढ़ा, स्लेट के ऊपर पढ़ा, एंड दे आर नाउ वर्किंग एट मल्टी नेशनल्स. बच्चे उनके अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं. सो दिस इज़ अ पाथ जहाँ पे उनकी एक, जिसमें फर्गसन ने या उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत कुछ दिया है, राइट. सो अब ऐसा नहीं है कि सबका जर्नी स्मूथ होता है. जो बच्चे होते हैं वो ऑफन उस एंड प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं जो बाद में इतने सालों की मेहनत के बाद बने. वो ये नहीं देख रहे होते कि उसके पीछे कितने फेलियर्स हैं. दे ऑफन स्किप के भाई आपके पहले आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स में किस तरह से फ़ेल हुए, किस तरह की पढ़ाइयाँ की, क्या चैलेंजेस आए. सो बच्चों को काफ़ी टाइम पे ये समझ नहीं आती, तो या अगर उनकी प्रोग्रेस थोड़ी डिले हो रही होती है तो उस पर वो डिसहार्टन हो जाते हैं. सो आई ऑलवेज टेल माई चिल्ड्रन एज वेल दैट लुक, देर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स. हर फ्लावर ना एक टाइम पे ब्लूम नहीं करता. सो देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरी सिंगल फ्लावर टू ब्लूम. रोज़ इज़ गोइंग टू ब्लूम एट अ डिफरेंट क्या कहते हैं टाइम, दूसरा फ्लावर किसी और. तो हर बच्चा, हर स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, हर अपने हिसाब में उसकी एक यूनिकनेस है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है. सो कभी भी इस चीज़ से डिसहार्टन ना हो कि अभी मेरे लिए मेरा फर्गसन में नहीं हुआ, मेरा KPMG में नहीं हुआ. सो इन चीज़ों से ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आप उदास हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं. एफ़र्ट अपनी पूरी करें, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि दैट वाज परहैप्स नॉट योर टाइम टू ब्लूम, एंड योर टाइम टू ब्लूम विल सून कम. You have ended the podcast on a beautiful note. Thank you so much. I feel like that was very much needed. Thank you so much for your time and for this lovely conversation. Thank you very much. Thank you. Alright guys, that is all for today. I will catch you guys in the next episode. This is Aliza Naqvi signing off.